Today's topic that we have to cover is reflex action. Coming up in front of you are a few examples of reflex action: touching a hot object and withdrawal of hand, constriction and expansion of pupil when we focus light on the eye. You can see the pupil increasing and decreasing. Sneezing is another example. Pushing of the leg forward on hitting an object on the leg. All these are examples of reflex actions. Now these reflex actions, they take place as a response to stimulus. Now what is a stimulus? We have done in the previous video that there are a number of changes that occur around us. Our body is exposed to a stimulus like heat. In this example, you can see heat is the stimulus and withdrawal of hand is the response. In this example, light is the stimulus and constriction of pupil is the response. Sneezing is the response to the exposure to environmental pollution, and then hitting of the object is the stimulus, and pushing of the feet forward is an example of responding to that stimulus. Now all these responses, they are actually involuntary actions performed by various receptors which are found in our body, and all these involuntary actions, they work in accordance with the nervous system which is found inside the body. Now nervous system works with the help of a set of organs and helps us to adjust to the number of changes that we are exposed to in our daily life. Otherwise, these stimuli to which we are exposed can cause harm. हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं ये स्टिमुलसेस. तो अब हम आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं. हाउ डू यू डिफाइन अ रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन is defined as involuntary. Involuntary, all of you know, children. Involuntary response to a stimulus. Automatic. Involuntary means automatic, without the involvement of any kind of thinking process. The most important key word here is involuntary, because हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सेस तो बहुत सारे होते हैं, सोच समझ कर करते हैं हम, लेकिन अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे इनवॉलेंट्री हो, then we call that as a reflex actions. And these reflex actions, they are actually very important, which save us from various kind of harms. नहीं तो बहुत सारे situations में हमारे साथ बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं. So now we'll see कि ये reflex action actually हमारी बॉडी में होता कैसे है. उसके लिए हम एक पूरा का पूरा ट्रांसमिशन प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, न्यूरॉन्स, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये पहला वाला एग्जांपल लेंगे, बिकॉज ये सबसे कॉमन स्टिमुलस है जिसको हम लोग रोज़ फेस करते हैं. दिस इज़ योर हैंड. इस हैंड के अंदर आपको एक बाइसेप दिख रही है, बाइसेप मसल. दिस मसल हेल्प्स यू टू मूव योर हैंड. क्लियर? इस हाथ से जब हम कोई गर्म चीज़ टच करते हैं तो हमारी ये जो मसल है ये आपको उस गर्म चीज़ से बचाने में, अपने हैंड को मूव करने में हेल्प करती है. दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. ये न्यूरॉन्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक रिफ्लेक्स आर्क बना रहे हैं. स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से हमारी बॉडी को कनेक्ट करती है, एंड दिस इज अ सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट the nerve, sensory nerve. Can you see how the sensory nerve, ये एक single nerve है. It is so big. I told you in the previous video that these nerves, they are big in size. And what is this loop? I will explain to you this at the end of the video. ये nerve आकर spinal cord में जो अभी हमने बनाया, ये nerve ending है. Nerve ending ये एक single बड़ी सी nerve है. इसके जो डेंड्राइट्स हैं वो हमारे रिसेप्टर से कनेक्टेड है, और जो नर्व एंडिंग है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कनेक्ट हो रही है. क्लियर? ना जैसे ही हमें कोई मैसेज मिलता है, कोई स्टिमुलस मिलता है जिसके खिलाफ हमें एक इनवॉलेंट्री एक्शन करना है, उस एक्शन के लिए एक छोटा सा रिले न्यूरॉन है. एज यू कैन सी, दिस रिले न्यूरॉन विल कनेक्ट
द सेंसरी नर्व, द सेंसरी न्यूरॉन, और ये जो सेंसरी न्यूरॉन में मैसेज आ रहा है ये ब्रेन तक भी पहुंचता है. ऑल्दो रिफ्लेक्स एक्शंस में हम ब्रेन को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते, बिकॉज ब्रेन टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू थिंक, इट एनालाइजेस द सिचुएशन. हेंस ब्रेन को सिर्फ हम एक इनपुट सिग्नल दे देते हैं दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो द रोल ऑफ ब्रेन इज ओनली इन रिसीविंग द इनपुट सिग्नल अबाउट द स्टिमुलस, कि हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, बस इतना ब्रेन को पता लगता है. सारा डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड लेती है. स्पाइनल कॉर्ड टेक्स द डिसीजन कि आपको इस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है. एंड एज यू कैन सी ए स्मॉल न्यूरॉन, जिससे अब हमारा मोटर न्यूरॉन कनेक्ट होगा, और ये मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के ऑर्डर को लेके जाएगा हमारी मसल तक. ये मसल हमारा इफेक्टर है जो हमारे हाथ को विड्रॉ करने में हेल्प करेगी. सो दिस इज़ द मोटर नर्व. मोटर नर्व का जो नर्व एंडिंग है दैट इज़ कनेक्टेड टू द मसल. एंड यू कैन सी जैसे ही मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमने अपना हाथ अलग हटा लिया. क्लियर? सो ऑल दिस, ये जो रिफ्लेक्स आर्क बना स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये सेंसरी नर्व, ये रिले नर्व और ये मोटर नर्व, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. इस रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू हमने पूरा अपना रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट किया. मैसेज को लेके आना, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना, देन स्पाइनल कॉर्ड का डिसीजन लेना है कि क्या करना है. अगर हम ब्रेन को मैसेज देंगे तो ब्रेन का ऑर्डर आते आते तो हमारा हाथ जल चुका होगा और हमें वी विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन हैंडलिंग दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, बिकॉज ब्रेन इज़ अ थिंकिंग ऑर्गन. वो सोच समझ के एक्शन लेता है. दैट इज़ द रीज़न वाई वी डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शंस. ब्रेन को सिर्फ एक स्टिमुलस का हम इनपुट सिग्नल देकर छोड़ देते हैं. द रिमेनिंग पार्ट टेक्स प्लेस थ्रू दिस रिफ्लेक्स आर्क विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द रिसेप्टर. ये रिसेप्टर है आपका, ये सेंसरी नर्व है, ये रिले नर्व है, ये मोटर नर्व. दिस एंटायर आर्क फॉर्म्ड इनसाइड योर हैंड इज़ नोन एज रिफ्लेक्स आर्क. इस तरह से हम इनवॉलेंट्री एक्शंस को कैरी आउट करते हैं एंड वी हेल्प इन कंट्रोलिंग द वेरियस एक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी. इनवॉलेंट्री, इस केस में पूरे इस रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पाइनल कॉर्ड. राइट? दीज, अब आपने देखा कि ये दो नर्व जो है उसमें से सेंसरी नर्व बड़ी है, मोटर नर्व छोटी है. सो ये नर्व्स का जो साइज़ है वो उनको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है मैसेजेस को लेकर, दिस इज़ द लेबलिंग ऑफ द डायग्राम. दिस इज़ द सेंसरी नर्व. ये लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर. दिस वन, द ब्लू वन इज़ द मोटर नर्व. इसको मोटर नर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से मूवमेंट होता है. ये नर्व मूवमेंट करवाती है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, रिलैक्स करके मूवमेंट क्रिएट करती है. दैट इज़ द रीज़न वी कॉल इट एज मोटर नर्व. ये छोटा सा न्यूरॉन जो सेंसरी और मोटर नर्व को कनेक्ट कर रहा है, दिस इज़ नोन एज अ रिले न्यूरॉन. सो 3 तरह की नर्व्स हैं. दिस इज़ द रिले न्यूरॉन. 3 नर्व्स से मिलकर बनता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क. द सेंसरी न्यूरॉन, द रिले न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन. और ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्स आर्क आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बन रहा है. This is your spinal cord, right? So this entire pathway followed by a reflex action is known as the reflex arc. Fine? So reflex arc, reflex action, ये दो अलग चीज़ें हैं. रिफ्लेक्स एक्शन वो रिस्पॉन्स है जो हम प्रोड्यूस करते हैं, और रिफ्लेक्स आर्क ये रास्ता है जिसके थ्रू ये रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, जो 3 नर्व से मिलकर बना है. राइट? सो this is actually what we call it as reflex action.